નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 14 ડિસેમ્બર, જોઈએ આજના સમાચાર। અકીક શું છે? વડાપ્રધાને રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિનને અકીક મઢેલા 2 બાઉલ ભેટ આપ્યા। કચ્છમાં પણ અકીક જમીનમાંથી મળે છે। જુઓ અકીકનો ઇતિહાસ। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન ગત અઠવાડિયે ઇન્ડિયા રશિયા સમિટમાં આવ્યા ત્યારે આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને ભેટ સ્વરૂપે અકીકનો બાઉલ ગિફ્ટમાં આપ્યો હતો। ત્યારે લોકોમાં આ અકીક શું છે, તે ક્યાંથી મળે છે અને ભારત વર્ષમાં અકીકનું શું મહત્વ છે તેવા પ્રશ્નો ઉઠ્યા હતા। ભારતમાં 4500 વર્ષ પહેલાં પણ હડપ્પન સંસ્કૃતિમાં અકીકની ખાણો હતી। અકીક 25 પ્રકારના અને જુદા જુદા રંગમાં હોય છે। અકીક વોલ્કેનિક પથ્થરમાંથી બને છે। વોલ્કેનો જ્યારે બહાર નીકળે છે ત્યારે અને જ્યારે આ વોલ્કેનોનો ગરમ લાવા બહાર નીકળીને ઠંડુ પડે છે ત્યારે તેની અંદર જે વોલેટાઇલ્સ રહેતા હોય છે, એટલે કે સિલિકાનું પાણી અથવા તો ફ્લોરાઇડનું પાણી અને ગેસ જામી જાય છે અને ત્યારબાદ તે ધીમે ધીમે અકીક બને છે। અકીક તે એક પ્રકારનો સેમી પ્રેશિયસ સ્ટોન છે। જીઓલોજીકલી અકીક સેમી પ્રેશિયસ સ્ટોન છે અને તે પ્રીશિયસ સ્ટોનની કેટેગરીમાં નથી આવતું। આ સેમી પ્રીશિયસ સ્ટોનની પોલિશિંગ કરી તેને આકાર આપવામાં આવે છે, જેનાથી તેની કિંમત વધી જાય છે, પરંતુ તેની કિંમત એટલી નથી જેટલી ડાયમંડ, નીલમ કે પોખરાજની હોય છે। અકીકમાં સુંદરતા ખૂબ વધારે હોય છે અને તેને અલગ અલગ આકાર આપવાથી તેની કિંમત વધી જાય છે અને અકીક 25 પ્રકારના હોય છે અને તે જુદા જુદા રંગમાં હોય છે અને તેમાંથી અનેકવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવે છે જેથી તે સુંદર દેખાય છે। કચ્છની વાત કરવામાં આવે તો કચ્છ જિલ્લાની અંદર ઘણી બધી જગ્યાઓ છે જ્યાં અકીક મળી આવ્યું છે, જેમ કે ભુવડ, આંતરજાળ, ખેડોઈ, ડગાળા જેવી સાઇટ ઉપરથી અકીક મળી આવ્યું છે। સૌથી વધારે અકીકનું પ્રમાણ કચ્છના નાના રણ પાસેના બેટ પાસેથી મળી આવ્યું છે, જે 12 કિલોમીટર લાંબુ છે અને 1.5 કિલોમીટર પહોળું છે। આ બેટ પર ભરપૂર પ્રમાણમાં અકીક મળી આવે છે। અહીં આજે પણ મોટા મોટા અકીકના પથ્થર સપાટી પર તૂટેલી ફૂટેલી હાલતમાં જોવા મળે છે। આ અકીકના પથ્થરોને હેતુસર વિવિધ આકાર પણ આપવામાં આવે છે। ઘણા આર્કોલોજિસ્ટે ભુવડ, ખેડોઈ અને આ બેટની સાઇટ ઉપર કામ કર્યું છે, ઉપરાંત તેના પર પ્રોસેસ કરવામાં આવે છે। આજથી 4500 વર્ષ પહેલાં હડપ્પન સંસ્કૃતિના જે લોકો રહેતા હતા, ઉપરાંત ત્યારે 4 થી 5 અકીકની ફેક્ટરીઓ પણ હતી। અકીકના પથ્થરો પર જુદી જુદી પ્રોસેસ કરીને તેનામાંથી વિવિધ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવતી હતી। આ ઉપરાંત ખંભાતની બાજુમાં આવેલા લોથલની વાત કરીએ તો લોથલનું જે માઇનિંગ હતું તેમાં અકીક ક્યાંથી આવતું હતું, તો ખંભાતની અંદર પણ અકીકની ખાણો હતી અને છેલ્લા 4 સદીથી એટલે કે 16મી સદીથી ખંભાતમાં જે અકીકની ખાણો છે અને અકીકના પ્રોસેસિંગ માટેના જે પ્લાન્ટ છે તે પૂરા ભારત વર્ષ માટે મહત્ત્વનો પ્લાન્ટ માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે જે હડપ્પા સંસ્કૃતિના લોકો જે રીતે અકીકની પ્રોસેસ કરતા હતા એ જ ટ્રેડિશનલ પદ્ધતિથી આજે ખંભાતમાં પ્રોસેસ થઈ રહ્યું છે। સમગ્ર બાબતે કચ્છ યુનિવર્સિટીના અર્થ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ વિભાગના વડા ડૉક્ટર મહેશ ઠક્કર સાથે વાતચીત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે लोगों में इंतज़ारी है कि ये अगेट क्या है और अकीक कहाँ मिलता है और भारतवर्ष में उसकी महत्ता क्या है। अकीक में सुंदरता बहुत है। अकीक करीबन 25 प्रकार के अकीक होते हैं, उसमें अलग अलग पैटर्न्स, ज़िब्रा अगेट बोलते हैं, मोस अगेट बोलते हैं, कई प्रकार के कई कलर के अकीक होते हैं। तो इसलिए वो जब उसकी चीज़ें बनाते हैं तो खूब सुंदर लगते हैं। तो ये आज आम आदमी की बात रही है। तो जब आपने पूछा है कि कच्छ में कि गुजरात में कहाँ कहाँ अगेट या तो अकीक का पत्थर मिलता है। अकीक एक वॉल्केनिक रॉक में से बनता है। वॉल्केनो जब बाहर निकलता है तो जब धीरे धीरे उसका गर्मी बाहर निकल के वो जब ठंडा होता है लावा, तो ठंडा होने के बाद इसके अंदर जो वॉलेटाइल्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सिलिका का पानी या तो फ्लोराइड का पानी और गैसेस, वो जम जाने के बाद धीरे धीरे उसमें से अगेट बनता है। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। हम उसको बोलेंगे कि पूरे वेस्टर्न इंडिया में 6.5 करोड़ साल पहले ये सब अकीक का जो पत्थर है
वो बेसाल्ट के अंदर जो बना है उसका फॉर्मेशन हो चुका था 6.5 करोड़ साल पहले। लेकिन कच्छ में और गुजरात में ऐसे ही डेक्कन फॉर्मेशन या तो कालमिंट जो पत्थर है उसमें से जो अकीक बाहर निकल के हमको 14 मिलियन के बीच में ऐसी कोई मिट्टी बनी कि जिसमें ये अकीक अलग होके सेडिमेंट में जमा हो गए। तो इस फॉर्मेशन में कच्छ के अंदर हमको बहुत सारी जगह की जहाँ से अगेट मिलता है, जिसमें बुअड़, अंतरजाल, खेरा, जंगर एंड डगाड़ा, ये कुछ कुछ साइट है जो जिसमें से अकीक पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अकीक सेडिमेंट देखा गया है वो मारडक बेट, जो कि लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर एक छोटा सा बेट है जो 12 किलोमीटर लंबा है और करीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। उस मारडक बेट में भरपूर अकीक पाए जाते हैं। अभी इस अकीक को आज भी आप जब जाओगे तब देख पाओगे कि बहुत बड़े बड़े अकीक के पत्थर पूरे सरफेस के ऊपर आपको टूटे फूटे हुए भी मिलेंगे, और कुछ कुछ अकीक के पत्थर जिसको पर्पसफुली उसको शेप दिया गया है। तो जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि ये किसने शेप दिया है, तो इससे पता चलता है। और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर काम किया है, तब पता चला है कि ये साइट मारडक बेट और जो अभी मैंने दूसरी साइट खेड़ोई और भुवड़ बताई, उस सब साइट में से अकीक का प्रोसेस किया जाता था। और वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, जबकि आज से 4,500 साल पहले जो हमारे यहाँ हड़प्पन लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रहते थे, उन्होंने यहाँ करीबन 4 से 5 साइट है जहाँ वो अकीक का फैक्ट्री था, और उस अकीक को प्रोसेस करके उसको कार्नेलियन बनाते थे और उसके बीड्स, उसको टम्बलिंग करके उसका बीड बनाते थे, उसके अलग अलग प्रकार की तस्तरी या बाउल और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो सिर्फ कच्छ की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरे भारतवर्ष में, वेस्टर्न इंडिया में जहाँ कच्छ देखा, गुजरात है और सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और हरियाणा, इन सब जगह यहाँ का अकीक वहाँ मिला है। तो उसके लिए भी बहुत बड़ी एक मिस्ट्री भी है कि अकीक का पत्थर यहाँ से कैसे गया। तब जब लोथल के अंदर इसका अभ्यास किया गया तो लोथल में ये जो छोटा सा पोर्ट था, वहाँ से अकीक का पत्थर प्रोसेस करके मेसोपोटामिया तक जाता था। तो ये प्रमाण आर्कियोलॉजिस्ट ने हमको दिया है कि अगेट आज नहीं पर 4,500 साल पहले भी उसका माइनिंग किया जाता था। आज उनकी पुरानी माइंस पर भी हम देख सकते हैं, सौराष्ट्र में और साउथ गुजरात में, जहाँ रतनपर है, अमरेली के आसपास, भावनगर के आसपास करीबन 15-20 ऐसी साइट्स है कि जहाँ से अकीक पाए जाते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल का जो माइनिंग था उसमें अकीक कहाँ से आता था, वो सबसे बड़ी बात है कि खंभात के आसपास, लोथल के कुछ किलोमीटर दूर खंभात है, खंभात के अंदर भी अकीक की माइंस थी। आज खंभात के अंदर पिछले 4 सेंचुरी से, लगभग 16 सेंचुरी से आज तक उसका प्रोसेसिंग प्लांट वो पूरे वर्ष में सबसे अहम प्रोसेसिंग प्लांट माना जाता है। लेकिन वो आज भी जब हड़प्पन करते थे उसी ट्रेडिशनल पद्धति से अकीक का प्रोसेसिंग करते हैं। वहाँ जो अकीक आता है वो आज यहाँ का जो गुजरात का अकीक, या तो वेस्टर्न इंडिया में जो महाराष्ट्र में भी कुछ अकीक के पत्थर पाए जाते हैं, वो अकीक आज वहाँ वो लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उनके लिए ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा माल होना चाहिए। तो आज वहाँ जो अकीक का पत्थर इंपोर्ट होता है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, वो करीबन कई 4 या 5 कंट्री जो साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ है, या कुछ कुछ अकीक अफ्रीका से भी आता है और उसका प्रोसेस होता है। अकीक एक तरह का सेमी प्रेशियस स्टोन है। जियोलॉजिकली अगर देखा है तो सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। वो प्रेशियस स्टोन की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन भी जब उसका पॉलिशिंग और उसको शेप दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसकी वैल्यू इतनी नहीं है कि जितनी डायमंड की है या नीलम की है या पोखराज की है, लेकिन सेमी प्रेशियस स्टोन
की अलग अलग चीज़ें बनने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો।